Hello friends. Now in this lecture we are saying the polar curve. Polar yani the equation in terms of r and theta. Okay. So the given equation is either in terms of f of r theta equal to 0 or f of theta is equal to r or r theta is equal to f of r. Now here if we are representing the curve in x and y axis only. But what the x-axis, so here we are treating that we are taking the given equation not in a Cartesian form, it is in a r and theta के form में. तो यहाँ पे we know that we always make an angle theta with the positive x-axis. This positive x-axis ox at which we can say that theta equal to 0 is called the initial line. ये positive x-axis है उसको बोलते हैं initial line. Okay. Now the next one, if theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi by 2 यानी पॉजिटिव y एक्सिस, इसको बोलते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल. पोल यानी क्या? पोल यानी ओरिजिन, दैट इज 0 0. या सो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द थीटा यानी जो एंगल से वी आर टेकिंग दैट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव. सपोज ये पॉइंट P है, ये OP इज द रेडियस वेक्टर R. ओके. So it make an angle theta with this. So I can say that r, that is radius, and angle theta. So according to that theta, I will find the radius of the given function, and I will draw the line point. I will take the point and draw the vector on this. Okay. ठीक है. अभी इसमें क्या है? इसमें जो फिक्स पॉइंट है O, उसको बोलते हैं ओरिजिन यानी हमारा ओरिजिन, इसको बोलते हैं इस टर्म में पोल. दूसरा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ along the x axis, positive ox axis, that is it is called the initial line at theta equal to 0. The distance OP is equal to r. R is a radius, right? Theta is equal to pi by 2 is a line perpendicular to the initial line and passing through the pole. So, to trace the curve for this polar form, I will find points. I will find 3 points, that is a symmetry, then pole, if pole exists, to tangent at pole, and then region. Okay. So, यहाँ पे we will find the region. So, if to find the region, I will draw a table for which I will find for different type of theta r is equal to a function of theta whatever the corresponding radius, and I will take the point at that distance from the origin. Okay. ठीक है. And then draw and a curve will find by joining these points. Okay. A smooth curve will draw. Now the given equation in r theta or f of r theta is equal to 0. R is equal to f of theta. अभी ये सिमेट्री क्या रहेगा कि about the initial line, symmetry about the initial line यानी if I replace theta by minus theta, the equation remain unchanged, then we can say that it is a symmetry about the initial line यानी positive x-axis. Okay, for example, r is equal to a cos theta. I know that cos is the even function, so theta replace करेंगे तो भी I get the again the same equation. So I will say that this for this example the symmetry about the initial line. Now the pole. Pole यानी I say that about the pole, symmetry about the pole यानी r is replaced by minus r, तो भी equation remain unchanged, then we can say that symmetry about the pole. So r square is equal to a square cos 2 theta. r भी positive, ये cos theta भी positive रहेगा, r की जगह minus r करेंगे तो भी I get the same. Now a line, a symmetry about the line passing through the pole and perpendicular to the initial line यानी हमारा y axis. तो इसमें if I replace theta by minus theta and r by minus r, तो भी I get the same equation. So I can say that it is a symmetry about the about the line passing through the pole and perpendicular to the initial line. So here one more case we can say that कि the symmetry about the y-axis, उसमें हम लोग लेंगे if I replace theta by pi minus theta, तो भी I will get the same equation. So I can say that it is symmetry about the line passing through the pole and perpendicular to the initial line.
अभी यहाँ देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, सो आई कैन से दैट तो साइन रहेगा तो पाई माइनस थीटा इज रिप्लेस बाय थीटा, or for other condition I will say that minus or minus theta is equal to f of r theta. So it is symmetry about the y-axis, यानी line passing through the pole and perpendicular to the initial line. अभी I want to find the pole lines, यानी क्या थीटा इक्वल टू द r इक्वल टू जीरो, रेडियस जीरो रहेगा, दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो ओरिजिन पे आएगा, right? So for such there must exist some value of theta for which r is equal to जीरो. अगर ऐसा थीटा है फॉर उसके लिए आर के जीरो आता है तो आई कैन से दैट पोल लाइज, पोल है. ओके, नाउ इफ पोल लाइज फाइंड द टेंजेंट एट द पोल. कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरी टाइम आई विल फाइंड द पोल एट द टेंजेंट एट द पोल बाय सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू जीरो. r इक्वल टू जीरो करो, आई गेट द टेंजेंट एट द पोल. r इक्वल टू जीरो करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा इक्वेट विद जीरो एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज नथिंग बट टेंजेंट एट पोल. अभी ये जो थीटा है हम लोग 0 to 360 में ही ड्रॉ करने वाले हैं पूरा. व्हाट इज दैट, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो 0 to 2 पाई तक. तो ये थीटा जो भी आएगा आई विल टेक ओनली फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम. सो आई गेट दिस वन, ये वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जीरो, ये पाई बाई सिक्स यानी 30, पाई बाई फोर 45, देन पाई बाई थ्री 60, इट इज पाई बाई टू 90, थ्री पाई बाई फोर pi, then we have a 5 pi by 4, 3 pi by 2, 7 pi by 2. अब ये pi by 4 है, यानी ये pi by 4 के अपोजिट 5 pi by 4, इधर 3 pi by 4 के अपोजिट 7 pi by 4. ओके, नाउ हियर वी कैन फाइंड. ऐसे हम लोग नॉट नेसेसरी इसमें लेंगे, हम डिग्री में लेंगे तो भी चलेगा, 30, 40, 50, 60 जितना चाहे उतना ले सकते हैं. ओके, सो दीज आर द रीजन एंड these theta I will find corresponding r and I plot the these what is the point of that length. जो r है उस r के हिसाब से हम लोग ये फाइंड कर ड्रॉ करेंगे और ये जो है ये कर्व स्मूथली, ये पॉइंट अगर स्मूथली अटैच करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उसका कर्व मिलेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट वी फाइंड द कर्व r square is equal to a square cos 2 theta. पहले क्या बोलेंगे, सिमेट्री. यहाँ पे आर स्क्वायर भी है और cos 2 थीटा भी है, यानी माइनस आर करेंगे तो भी आर आएगा, माइनस थीटा करेंगे और माइनस आर माइनस थीटा आर थीटा. ओके, तो ये कर्व है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड अबाउट द पोल. ऐसे कर्व में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट पोल भी है, तो सिर्फ हम लोग ये पार्ट का यानी फर्स्ट ऑप्शन का कर्व फाइंड आउट करेंगे. जो आएगा वो यहाँ ट्रेस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ ट्रेस करेंगे, तो हम लोगों को पूरा कर्व मिलेगा. ओके, अभी ये क्या है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, यानी इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, ये सब है. अभी पोल, पोल कहाँ पे है, पोल लाइज कब, ये देखो cos, आई नो दैट cos 90 इज 0. 90 करने के लिए मुझे थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, पाई बाय 4. सो आई विल टेक दिस पाई बाय 4. If theta is equal to pi by 4, I get r is equal to 0. ये कैलकुलेशन किया है मैंने, 2 pi by 4 यानी cos pi by 2 and that is equal to 0. अभी पोल है तो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट एट पोल, यानी ओरिजिन पे टेंजेंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट r इक्वल टू 0. r इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0. और cos 2 थीटा कब 0 होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 रहेगी. तो थीटा क्या चाहिए, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 एंड सो ऑन. लेकिन मुझे थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, आई वांट टू टेक द थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके, तो ये है ना, ये 4 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये रहे हमारे टेंजेंट, यानी यहाँ पे कर्व टच करेगा. ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग. चलो, टेंजेंट तो मिल गया. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो आई गेट दैट आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि cos 0 मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है. ये निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके भी हम लोग ले सकते हैं.
दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस है। अभी रीजन चाहिए। रीजन में क्या है, हम लोगों को जो टर्म्स है, तो हम लोगों ने क्या किया, रीजन के लिए आई विल टेक द पॉइंट जितने चाहिए उतने। अभी क्या बोला हम लोग, ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी है। तो मैं फर्स्ट ऑक्टेंट का कर्व फाइंड आउट करूंगी, तो सो सेम ट्रेस ऑन द अपोजिट साइड, राइट। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में मैंने क्या, ये तो पाई बाय 4 तो है हमारे पास, तो मैंने और दो ड्रॉ कर दिए, पाई बाय 6 और ये रहा पाई बाय 3। ये है पाई बाय 6, ओके। सो ये पाई बाय 6 रहेगा, तो पाई बाय 6 ये क्या है, ये है पाई बाय 4, राइट। और ये क्या रहेगा, पाई बाय 3, ये वाला पाई बाय 3। इतने पॉइंट मैंने निकाले, ओके। पाई बाय 3 और ये हमारा हमेशा का पाई बाय, ओके, ये पॉइंट रहे। अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने ये पॉइंट लिया, 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, इतना निकाला। तो आई विल फाइंड करस्पॉन्डिंग आर। सो आर इज इक्वल टू, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू, हमारा आर है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा। तो आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, राइट। तो ये पॉइंट निकाले, व्हाट इज दैट, आर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज 1, सो प्लस और माइनस ए, एक ये पॉइंट मिल गया। फिर आर इज इक्वल पाई बाय 6, तो 2 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3, सो इट इज 0.70707। फिर हम लोगों ने निकाला पाई बाय 4 यानी 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 इज 0। फिर पाई बाय 3 के लिए प्लस और माइनस अंडर रूट, ये इमेजिनरी है क्योंकि कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस 0.5 है, तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी यानी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पे, पाई बाय 3 को, हाँ। और पाई बाय 2 को, पाई बाय 2 कॉस पाई तो -1 है, अगेन कर्व इज नॉट प्रेजेंट। सो यहाँ पे मुझे कहा, यहाँ पे नहीं है, ये रीजन में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, जहाँ पे है हम लोग, मैं ना ब्लू डॉट लेती हूँ, ओके। ओके, आई विल टेक ग्रीन डॉट। तो यहाँ पे है ए, राइट। फिर यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट है, 0.707 ए, तो ये 0.707 ए, ओके। और पाई बाय 4 को यहाँ पे है 0, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो आई विल टेक 0। सो मेरा कर्व कैसे आएगा, मेरा कर्व आएगा ये वाला, और ये टच द tangent, okay। Now the same I will draw below the x, sorry, अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कट होता है, तो ये पेटल जैसा आना चाहिए, ओके। समटाइम्स what student draw like this, it is something like that, okay। ये ऐसे ऐसे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे राउंड चाहिए, क्योंकि this curve cut the axis, ओके। तो ये कट होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके। तो फिर ये रहा हमारा कर्व, ये ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ज्वाइन किया। फिर बिलो द एक्स एक्सिस, अपोजिट टू द एक्स एक्सिस, ये रहे हमारे कर्व, ओके, ठीक है। फिर आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा में क्या करेंगे, सी आर कॉस थीटा माइनस थीटा रिप्लेस बाय, ये रहा सिमेट्री अबाउट द, कहाँ, इनिशियल लाइन, अगेन एक्स एक्सिस, ओके। सो थीटा इज इक्वल टू पाई करेंगे तो मुझे आर इक्वल टू 0 आएगा। सो नाउ द टेंजेंट एट पोल, आर इक्वल टू 0 करो तो आई गेट थीटा इज इक्वल टू -1, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। आर इक्वल टू 0 करेंगे तो आई गेट टेंजेंट एट पोल, सो आर इज इक्वल टू 0, सो cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो कब आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑड में, राइट। सो 0 to 2 पाई लेना है, तो ओनली एक ही टेंजेंट है, थीटा इज इक्वल टू पाई। थीटा इज इक्वल टू पाई करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा यार, थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए। सो ये रहा हमारा इक्वेशन, मैक्सिमम क्या है, आर इज इक्वल टू 2a। सो ये थीटा इज, अभी अबव एक्स एक्सिस है, तो मैं कहाँ से रीजन फाइंड आउट करूंगी, मैं अबव एक्स एक्सिस का, यानी 0 to पाई तक रीजन फाइंड आउट करेंगे। देखो 0, फिर पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 4 और ये पाई, ओके। तो मैंने क्या किया, ये जो है पाई बाय 4, पाई बाय 0, पाई बाय 3, पाई बाय ये किया, फिर ये किया। अभी ये करेंगे तो क्या आता है, देखो
ये पाई जीरो के लिए थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए I get 2a, right? Then cos 0 is 1, 1 plus 1, 2a. Pi by 6, I get a cos pi by 6. It is 1.86. Pi by 4, I get cos pi by 4 is 0.5, so 1.5a. Pi by 2, cos pi by 2 is 0, so I get a. Then 3 pi by 4, 3 pi by 4 to 0.7. So 1 minus 0.7, I get 0.292a. And pi cos pi के लिए I get minus 1. So 1 minus 1, 0. So I am finding the point from 0 to pi. Okay. If symmetry about the initial line. So ये देखो, ये point है, ये 2a है, ये 1.8 है, ये पाई बाय 4 के लिए 1.7 है, पाई बाय 3 के लिए 1.5 है, और पाई बाय 2 के लिए it is a. Then it is 0.2 point ये, और ये 0. और ये टेंजेंट है ना, पाई इज इक्वल टू दिस वन इज द टेंजेंट. So I join this point like this. I join this point, so I get that a smooth curve, and it is symmetry about the x-axis. So the same curve I draw below the x-axis. ये हार्ट शेप है, इसके लिए इसको कार्डियोइड कहते हैं. ओके. अगर 1 प्लस कॉस थीटा, इसका इक्वेशन देखो, इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा. ओके. अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा होता तो यही इक्वेशन हम लोगों को उल्टा मिलता, यानी वी गेट द कर्व समथिंग लाइक दिस, ऐसे. ओके. ये ऐसे मिलता अगर माइनस रहेगा. अगर 1 प्लस साइन रहता तो सेम कार्डियोइड सिमेट्री अबाउट हम लोगों को वाई एक्सिस मिलता, ये वाला ऐसा सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस ऐसे मिलता. और अगर 1 माइनस कॉस थीटा रहता है, सी 1 प्लस साइन थीटा का मैंने किया है, 1 प्लस साइन थीटा के लिए आई ड्रॉ द कर्व. सो साइन थीटा पाई, साइन रहेगा तो आई विल रिप्लेस पाई माइनस थीटा. ओके. तो आई गेट इट इज अगेन थीटा. सो यहाँ पे सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस है. सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस है तो पोल फाइंड आउट किया. फिर हम लोगों ने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू जो टेंजेंट है वो फाइंड आउट किया, लेकिन टेंजेंट 3 पाई बाई 2 है, ये बिलो दिस वन 3 पाई बाई 2. ये टेंजेंट हम लोग कहाँ से लेंगे, कितने लेंगे हम लोग? सिर्फ टेंजेंट वैल्यू ले सकते 0 टू 2 पाई तक. ओके. तो मैंने इतना ही टेंजेंट लिया. फिर मैक्सिमम सी, अभी वाई एक्सिस ना, तो मैंने ये वाला रीजन फाइंड आउट किया. कौन सा? 0 पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, और बिलो दिस अप टू 3 पाई बाय 2. तो मैंने 0 निकाला, पाई बाय 6 निकाला, पाई बाय 4 निकाला, पाई बाय 2 निकाला. ये है हमारा 7 पाई बाय 4, राइट? तो 7 पाई बाय 4 निकाला, फिर 3 पाई बाय 2 निकाला. फिर जो आंसर आए, जो मैंने किया, सो वो ड्रॉ किए, तो मुझे मिला ये वाला. अगर माइनस साइन रहता तो आई गेट द लाइक दिस. ओके. ये वाला हार्ट इस टाइप का, राइट? सो ये हार्ट शेप है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियोइड. ओके. so this one is the polar form of the equation जो भी हम लोगों ने देखे. पोलर फॉर्म में इतना ही ध्यान में रखना है, मेरा जो इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, ये जो है 0 पाई बाई 6, ये हम लोग को फिक्स करेंगे हमेशा. मेरे जो है ये वाला, एक मिनट, रेड आई विल चूज दिस वन. हाँ, ये 0 लेंगे, फिर ये पाई बाई 6 लेंगे, पाई बाई 4 लेंगे, पाई बाई 3 लेंगे, पाई बाई 2 लेंगे. ये रहता है पाई बाई 3 पाई बाई 4 रहता है. ओके. तो ये 3 पाई बाई 4 रहेगा. तो यहाँ पे 7 पाई सॉरी 5 पाई बाई 4 है. ये जस्ट डिवाइड द गिवन क्वाड्रेंट इनटू 2 पार्ट, 5 रहेगा, और ये यहाँ पे रहेगा 7 पाई बाई 4. ओके. तो ये रहेंगे, इसके बीच में आपको चाहिए तो आप और ले सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कर्व. अभी ये इसके एग्जांपल मैं इसमें दूंगी, और हम लोग फाइंड करेंगे इसका. ओके. थैंक यू. नहीं समझा तो फाइंड ये व्हाट्सएप